नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। आसनसोल में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ रैली, राजू बनर्जी ने भरी हुंकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेयर जितेंद्र तिवारी पर राजू बनर्जी का करारा हमला। मेयर जितेंद्र तिवारी को इंगित कर कहा, तेरा क्या होगा कालिया। और আমরা মেয়রকে বলছি, अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या होगा। कोरोना और लॉकडाउन से आसनसोल बस स्टैंड में आधी बसों के पहिए थमे, बस मालिक से लेकर बस कर्मचारी हलकान। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी ने आज पूरे राज्य में लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली। इस रैली के जरिए बीजेपी ने पुलिस और तृणमूल पर हमला बोला। बीजेपी के राज्य भर में लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम के तहत आसनसोल में भी रैली बीएनआर मोड़ से निकाली गई। यह रैली कोर्ट परिसर स्थित एसडीओ ऑफिस गई, जहां एक ज्ञापन सौंपा गया। रैली में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। रैली में बीजेपी कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए पार्टी के राज्य महासचिव राजू बनर्जी विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने रविंद्र भवन के पास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने पुलिस को सीधे धमकी दी। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। পুলিশকে বলছি, বিশেষ করে যে পুলিশি সন্ত্রাস চালাচ্ছে, পুলিশি আগামী দিন কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। আমাদের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের উপর মিথ্যা মামলা দেবেন, তাই তো আমরা ক্ষমতায় আসবো। আর ক্ষমতায় আসার পর আপনাদের বাড়িতেও কিন্তু ছেলে মেয়ে আছে, আর তাদের উপর যদি মিথ্যা মামলা চেপে যায়, আমাদের কাছে দৌড়াদৌড়ি করবেন না, আমাদের কাছে দৌড়াদৌড়ি করবেন না। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করুন। আর খাকি বর্দি পড়ে আছেন বলে আইন আলাদা আপনাদের না, আর আমরা সাদা বর্দি পড়ে আছি বলে আইন আলাদা। এ চলতে পারে না বন্ধু। প্রত্যেকটা দোষী পুলিশ কার্যকর্তা যারা যারা এরকম ব্যবহার করছে, একটা একটা ঘটনার তদন্ত হবে। আর তদন্ত দোষী প্রমাণ হলে যত বড় আইপিএস আইএস হোক না কেন, এই পশ্চিমবঙ্গ আসানসোলের জেলের ভাত খেতে হবে। এ বিজেপি অঙ্গীকার করছে। তাই জন্য আপনারা যেভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করছে, এ বাংলায় গণতন্ত্র নেই। আর তাকে তুলে নিয়ে গেল সিভিক ভলেন্টিয়াররা, পুলিশ আসেনি, সিভিক ভলেন্টিয়াররা তুলে নিয়ে গেল থানায়। আর থানায় গিয়ে এমন পিটিয়েছে, তারপর গুলি করে তাকে খুন করে দিয়েছে। থানার ভেতর খুন করে দিয়েছে এই পুলিশ, এই তৃণমূলের এক শ্রেণীর পুলিশ। আর সেই পুলিশকে যখন আমরা বলি কি করব, পুলিশকে মিষ্টি খাওয়াবো না ফুল দিয়ে পুজো করব, আর এরকম দুর্নীতিযুক্ত পুলিশকে আমরা পা চাটাবো, পা চাটাবো, পা চাটাবো। তাই জন্য মামলা দিচ্ছে আমাদের ওপর, মামলা দিচ্ছে, কেস দিচ্ছে, নন মেলাবেন। আরে তোমার কেসে থোড়াই পরোয়া করে বিজেপির কার্যকর্তারা। যত মামলা আছে দিয়ে যাও, একটার পর একটা মিথ্যা মামলা দিয়ে যাও, কিচ্ছু করতে পারবে না। আর যদি হিম্মত থাকে, আমি আসানসোলের পুলিশকে বলছি, যদি হিম্মত থাকে তাহলে এই কয়লা মাফিয়াকে যে মেয়র আছে আসানসোলে, কি তিওয়ারি, জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে একটা মামলা দিয়ে দেখান, তাহলে বুঝবো যে আপনারা বাপের বেটা আছে। ওসিএল উড়িষ্যা সিমেন্ট লিমিটেড কোম্পানি এখানে কারখানা খুলেছে। তারা কোল ব্লকের জন্য কয়লা তোলার জন্য তারা সরকারের থেকে পারমিশন নিয়েছে। কিন্তু কি বিষয় জানেন, রানীগঞ্জ আর মেদিয়াতে, বিশেষ করে রানীগঞ্জ মেদিয়াতে কয়লা তোলার কথা পার ডে 50 গাড়ি, আর সেখানে কয়লা উঠে যাচ্ছে 200-250 গাড়ি। আর সব লুট করছে তৃণমূলের নেতারা, এক শ্রেণীর পুলিশ।
গব্বর সিং বলছিল না, আর আমরাও মেয়রকে বলছি, আরে তেরা क्या होगा রে কালিয়া, তেরা क्या होगा। আগামী দিন দেখবেন যত বড় নেতা হোক তৃণমূলের, জেলের ভাত খাবো, জেলের ভাত খাবো। बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ रैली के बाद पार्टी के महासचिव राजू बनर्जी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने काफी तीखे तेवर में पुलिस, तृणमूल कांग्रेस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই, আর তাই আজকে বাংলার মানুষ রাস্তায় নেমেছে। একদিকে দেখছেন যে আমাদের বিজেপি কর্মীকে পুলিশ কাস্টডিতে পুলিশ পিটিয়ে খুন করে দিচ্ছে, গুলি করে খুন করে দিচ্ছে, আর তারপর মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দিচ্ছে। গণতন্ত্র কোন জায়গায় গেছে? আজকে মা বোনেরা রাস্তায় বেরোতে পারে না। আজকে আমরা রাস্তায় বেরোলে, বিরোধীরা রাস্তায় বেরোলে তাদের উপর মিথ্যা মামলা চাপানো। পুলিশ আর তৃণমূল এক হয়ে গেছে, সরকার আর তৃণমূল এক হয়ে গেছে। আর তাই জন্যে বাংলার মানুষ পরিত্রাণ চাইছে, মমতা ব্যানার্জি থেকে পরিত্রাণ চাইছে, এই স্বৈরাচারী শাসক, এই হিটলারি শাসক, তার থেকে পরিত্রাণ চাইছে। আর তাই আমরা বাংলার মানুষের এই আন্দোলনকে সামনে নিয়ে, সঙ্গে নিয়ে আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেখানে যেখানে এসডিও এসডিএম অফিস আছে সেখানে আমাদের অবস্থান, বিক্ষোভ, ধর্ণা। কারণ এই পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত গণতন্ত্র ফেরাতে হবে। গণতন্ত্রকে হত্যা করে দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আপনি জামুরিয়াতে যে ভাষায় পুলিশকে আক্রমণ করেছিলেন, তারপরে দেখা গেছে জামুরিয়াতে আপনার বিরুদ্ধে সুমোটো কেস করেছে। আজকে একই ভাষায় আবার আসানসোলে আক্রমণ করলেন। একের পর এক তো কেস দিয়েই যাচ্ছে আপনার। আরে কেস দিতে দিতে তো পুলিশই শেষ হয়ে যাবে। থোড়ি কেস দিয়ে আমাকে ভয় দেখিয়ে দমাতে পারবে? এখানে জিতেন্দ্র তেওয়ারি আসানসোলের মেয়র, তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা আছে, পুলিশ কেস দিয়েছে? হিম্মত নেই। রাজু ব্যানার্জিকে যদি কেস দিয়ে আটকাতে পারে, হিম্মত থাকলে আটকাক না। শুধু আমাকে না, আমার বিজেপি কোনো কর্মীকে কেস দিয়ে আটকাতে পারলে আটকাক না। হাজার হাজার কর্মী এসছে আজকে, প্রয়োজন হলে পুলিশ থাড়া ফাড়া গুড়িয়ে দেবো, কিচ্ছু রাখবো না, সেই ক্ষমতা বিজেপির আছে। কিন্তু আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করি, আর তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলছি। গতকালের ঘটনা দেখেছেন, পুলিশকে কি করবে? মিষ্টি খাওয়াবো, ফুল দেবো? আমার বাড়ির একজন বাচ্চা ছেলেকে সেখানে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করে হত্যা করে দিল, ছেড়ে দেবো পুলিশকে? ভাবছেন? প্রত্যেকটা তদন্ত হবে, যত বড় আইপিএস অফিসার হোক জেলের ভাত খাবে। बीजेपी के महासचिव राजू बनर्जी ने पार्टी की लोकतंत्र बचाओ रैली में आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। अवैध खनन में उनका नाम जोड़ते हुए बनर्जी ने कहा कि तेरा क्या होगा कालिया। इस बात से मेयर काफी नाराज दिखे। उनकी नजर में यह बात आई तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। भी इसी तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग शायद उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनके पार्टी का भी कंट्रोल नहीं है, या पता नहीं क्यों उनको लोगों का मनोरंजन करने के लिए इस तरह की बात बार बार वो करते हैं। तो मैं केवल एक बात कह सकता हूँ कि यदि भविष्य में देखते हैं कि वो ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तब मैं कहूँगा कि राजू बन गया जेंटलमैन। राजू जिस अवस्था में है वो तो ऐसे भाषा का ही प्रयोग करेंगे। यदि जेंटलमैन बन जाता है तब तो, लेकिन वो जेंटलमैन बन पाएगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र बचाओ रैली में हजारों लोग जुटे थे। रैली में खचाखच भीड़ थी। रैली में उमड़े भाजपा समर्थकों को देख यह लग ही नहीं रहा था कि कोरोना जैसी महामारी फैली है। बीजेपी की रैली में भाजपा समर्थक किस तरह एक दूसरे से सटते हुए चल रहे हैं, यह स्पष्ट दिख रहा है। इनके मन में कोरोना महामारी का जरा भी डर नहीं है। ऐसा लगता है कि कोरोना जैसे बीते दिनों की बात हो। यहाँ तक यह भी दिख रहा है कि कई सारे लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं ताकि संक्रमण से बचा जा सके। पार्टी की रैली में जुटी भीड़ को देखकर बीजेपी नेता बहुत उत्साहित थे। हालांकि राजू बनर्जी ने यह जरूर कहा कि हम सड़कों पर इकट्ठा नहीं होना चाहते, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और उनके इशारे पर चलने वाले पुलिस ने हमें विवश कर दिया है कि हम रास्ते पर आएं और अपना विरोध जताएं। बहरहाल यह निश्चित दिख रहा है कि इस रैली में इतने लोग के इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से आसनसोल के परिवहन व्यवसाय पर क्या असर पड़ा, यह देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के वापसी के बाद स्वागत है। कोरोना की वजह से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। हर तरह का बिजनेस और उससे जुड़े लोगों को कोरोना और उसे रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन ने मुसीबत में डाला है। उनमें ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग भी हैं। बस मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर से लेकर बस स्टैंड के आसपास की दुकानों की कैसी मुश्किलें बढ़ी, आइए देखते हैं न्यूज़ प्रहर की विशेष रिपोर्ट में।
आसनसोल से दूसरे जिले जाने वाली बसें लॉकडाउन की वजह से सबसे अधिक प्रभावित हुई है। पहले तो लॉकडाउन में बसें पूरी तरह बंद रही, लेकिन जब बसों का चलना शुरू भी हुआ तो यात्रियों की संख्या बहुत सीमित है। लोग आना जाना कर रहे हैं, इससे बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बस चालक से सुनते हैं। का जो दिन से हो रहा है वो दिन से कोई गाड़ी में सवारी नहीं है, तेल का भाव नहीं रोकता है, और तो पैसेंजर तो नहीं है, एक बार खाली खाली ले जाना है, खाली खाली ले आना है, और हम लोग को वेतन भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। परिवार के लिए तो बहुत दुख होता है। कहाँ बस चलता है? कहाँ एक बोलपुर आसानसोल चल रहा है। पहले कितना चलता था, अभी कितना चलता है? अभी तो चल रहा ही नहीं है, अभी तो आगे तो अच्छा चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है, जोश से चला रहा है। हाँ, जोश से चला रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। रोज 1000 रुपया, कोई दिन 1200, कोई दिन 500। हाँ, ऐसे नुकसान होता ही है। लॉकडाउन के पहले आसनसोल से दूसरे जिले और राज्यों को लिए करीब रोजाना 450-500 बड़ी बसें चलती थी, लेकिन इनमें से आधे के पहिए अभी थमे हुए हैं। बस नहीं चलने से बस चालकों व कंडक्टर के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें किन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, आइए इस बस कर्मचारी के मुँह से सुनते हैं। बोल रहे हैं कि सब हम लोग सिर्फ समय पार कर रहे हैं, इससे पेट भी नहीं पड़ रहा। बोलिए 150-100 रुपये मिलेगा सारा दिन में, तो लड़का बच्चा का सब्जी नहीं हो रहा पूरा। लेकिन क्या किया जाए, किसी तरह अपना जो है दूसरा काम हम लोग से इस उम्र में होगा नहीं। अब बोलिए ये सब दादा का देखिए खत्म हुआ, कहाँ जाएंगे दूसरा जगह ड्यूटी करने के लिए। चलो जो आ रहा है वही उसी में अपना काम चलाया जा रहा है। दरअसल यात्रियों ने भी दूसरे शहरों में आना जाना कम कर दिया है। कोरोना ने परिवहन व्यवसाय को बड़ी चोट दी है। बस चालकों और कंडक्टरों को यात्रियों के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। पहले के मुकाबले अब स्थिति काफी बदल गई है। प्रॉब्लम देखिए यही है कि जिस मात्रा में पैसेंजर का आवागमन होना चाहिए वो है नहीं, जिसके कारण हम लोगों को किसी तरह बस तो चला ले रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए खासतौर से वर्कर के हिसाब से बोलिए या मालिक को बोलिए, वो है नहीं। बस किसी तरह हम लोग रेंगते हुए चल रहे हैं। जीवन को किसी तरह से निर्वाह करना है, उसी ढंग से हम लोग चले जा रहे हैं। डीजल में जो बढ़ोतरी हुआ है, बस के भाड़े में तो बढ़ोतरी हुआ नहीं है, जिसके कारण बस को परिचालन में भी बड़ा असुविधा हो रहा है हम लोगों को। और पैसेंजर का तो अवस्था देख रहे, पूरा बस स्टैंड में सिर्फ हॉकर और बस स्टाफ ही नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग चल रहे हैं, शायद आने वाला कल में सुधार हो, इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग भी इसी उम्मीद के सहारे अभी तक चल रहे हैं, बस को चलाने का कोशिश कर रहे हैं और चलाए। लेकिन आज भी हम समझते हैं कि 40 से 45% बस अभी भी ऑन रूट पर नहीं आ पाई है। जिस तरह का जो माहौल है अभी का, महंगाई का जो हाल है, खर्च जो बस का है, भाड़ा में तो कुछ हुआ नहीं है, भाड़ा वही पुराना ही है हम लोगों के पास में, जिसके कारण मेंटेनेंस का भी खर्च बढ़ रहा है। और इस हालत में सारी बसों को चलाना मुश्किल है। देखा जाए कुछ दिन बाद। अभी सरकार से कोई मदद मिल रही है, छूट, कोई सरकार से छूट? सरकार से छूट अभी तक यहाँ पर तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। अब भितरिया अगर ऑनर लोग के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये कहना मुश्किल है हमारे लिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। आसनसोल से दूसरे बड़े शहरों के लिए बस कम संख्या में चलने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उन्हें इनके लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। बिहार झारखंड से जो बस आता था तो हम लोग को यहाँ पर पैसेंजर मिलता था। अब ना कोई बिहार से गाड़ी यहाँ बंगाल में ढुक रहा है, ना इधर से कोई गाड़ी बाहर जा रहा है। पब्लिक आता भी है तो बहुत परेशान है, किसी तरह का उसको साधन नहीं मिला। कोई किधर से बर्धमान से आया या कलकत्ता से आया, वो जाने के लिए बिहार झारखंड जाना है, वो झारखंड के लिए सवारी नहीं पा रहा, गाड़ी नहीं पा रहा, वो बेचारा गरीब आदमी परेशान यहाँ पर हो रहा है, उसको आने जाने का साधन नहीं हो रहा है। आसनसोल बस स्टैंड से जितनी बड़ी संख्या में बड़ी बसें बंगाल के दूसरे जिले और बिहार, झारखंड व ओडिशा के लिए चलती है, उसी तरह मिनी बसें भी करीब 500 की संख्या में चलती है। हालांकि यह मिनी बसें आसनसोल से बढ़ाकर रानीगंज, बानपुर, जामुड़िया, चुरुलिया, सलानपुर, चितरंजन, डिसरगढ़ आदि जगहों के लिए चलती है, लेकिन मिनी बसों को भी यात्री अब कम मिल रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने बस कर्मियों को यात्रियों के साथ साथ पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। लॉकडाउन के बाद से, लेकिन पैसेंजर नहीं हो पा रहा हम लोग।
परेशान है, तेल का दाम नहीं उठ रहा। अभी कौन सा न्यूज़ सरकार तो बोला रहा है कि कुछ पैसा देंगे मिनी बस के मालिक को, लेकर अभी तक कोई इसका डिटेल नहीं हुआ। लेकिन हम लोग चला रहे हैं 150 100 हाजिरी पे चल रहा है, मालिक परेशान है, गाड़ी धीरे धीरे होने से बना नहीं पाता, ये हालत हो गया। सरकार से कोई मदद नहीं मिली? सरकार से बोला तो देंगे 15,000 का, मालिक सुना था हम लोग पेपर में देगा, लेकिन अभी तक कोई इसका डिटेल नहीं है, कुछ बोल नहीं पाते। आसनसोल बस स्टैंड में बसें कम चलने, यात्रियों के कम आने जाने से बस स्टैंड की दुकानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक होटल चलाने वाला व्यक्ति क्या कहता है, आइए उनके मुंह से ही सुनते हैं। हम लोग को होटल व्यवसाय तो एकदम खत्म है पूरा, मतलब आपको यहाँ इतना तकलीफ हो गया, कस्टमर नहीं आ रहा, खाने पीने में तकलीफ हो गया, खर्चा नहीं उठ रहा है, उसके बाद हम लोग को ठीक से मेंटेन नहीं हो रहा, लड़का बच्चा नहीं आ रहा, खाने नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद 7 तारीख 8 तारीख खाली लॉकडाउन दिखा रहा, उसका बहुत दिक्कत आ रही आ रहा, क्या करेगा, मेंटेन नहीं हो रहा, चला रहे हैं थोड़ा बहुत चला रहे हैं, 5 किलो 2 किलो चावल काट रहा, उसमें से पूंजी नहीं उठ रहा। पहले के मुकाबले कितना कम हो गया कस्टमर? अभी कमाई धमाई नहीं हो रहा। पहले के मुकाबले कस्टमर कितना कम? पहले ठीक होता रहा, आधा से ज़्यादा अभी आधा हो गया। पहले बहुत कमाई होता रहा, अभी एकदम कम हो गया। पहले 1000 रुपये आता था, अभी 200 रुपये 100 रुपये हो रहा है। आसनसोल से विभिन्न शहरों और जिलों के लिए चलने वाली बड़ी बसों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, यह आपने इस रिपोर्ट में देखी। अब आइए इन बसों के मालिकों का पक्ष जानते हैं। जो लॉकडाउन हुआ है इसमें हम लोग को भारी से नुकसान हुआ है। आज जो हम लोग को सरकार बोले थे जो टैक्स मुकुब हो गया, टैक्स बाद दिसंबर देने से चलेगा, मार्च देने से चलेगा, मगर इससे हुआ नहीं है। हम लोग को टैक्स देने पड़ रहा है, विथ हम लोग अगर जो भी टैक्स पहले नहीं जमा किया डेट में उसको फाइन हम लोग को देने पड़ रहा है। अच्छा, तो इसमें बस मालिक लोग को जो है ड्राइवर है, उसके बाद खलासी, क्या उनको पैसा पेमेंट करना पड़ा लॉकडाउन में? हम लोग उन लोग को जैसे चावल, आलू है, अनाज, ये हम लोग उन लोग को दे रहा था। अभी बस की क्या स्थिति है? अभी हमारा जो बस का स्थिति है, पहले हम लोग को तो 25% बस चल रहा था 2 महीना इसमें, अभी हम लोग को 50% का प्लस हो गया बस रूट में। हम लोग को बस प्लेइंग भी कर रहा है। हम लोग को झारखंड और बिहार बाद दे के बाकी सब जहाँ पर में हम लोग को रूट है वो रूट का गाड़ी चालू हो गया है। तो पैसेंजर मिल रहा है? अभी पैसेंजर हम लोग को जैसे उधर बीरभूम का पैसेंजर हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग रानीगंज आसनसोल का पैसेंजर कम हो रहा है, वो भी एक कारण है। उसमें आपको एसबीएसटीसी भी कोई भी जगह में, हर जगह में खड़ा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में आपको जो भी एक्सप्रेस बस है, सुपर एक्सप्रेस बस है, वो लोग को हर जगह में स्टॉपेज देके पैसेंजर उठाता है, इसीलिए लोकल बस का मार हो रहा है। अच्छा, तो आने वाला दिन क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आने वाला दिन बहुत बड़ा हम लोग को समस्या है। अगर ऐसे ही चलेगा तो बहुत सारा मालिक बढ़ जाएंगे और इतना बस हम लोग चला नहीं सकेंगे। आम पब्लिक का परेशानी हुआ, उसके बाद में जो ऑटो टोटो जो चल रहा है वो लोग अभी इतना पैसा ले रहा है, तो अब भी जा रहा है ऑटो टोटो में। आम पब्लिक को भी तो देखना है थोड़ा, जो नहीं भाई हम लोग बस में चढ़े, और बस में हम लोग को जितना स्टाफ है, देखिए ऑटो टोटो में तो नहीं है, सिंगल आदमी है। हमारा बस में 4 स्टाफ है, 4 स्टाफ को तो संसार चलता है इस बस में से। तो अभी आप लोग, अब ये जो स्थिति समस्या हुई, अब सरकार से क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? सरकार हम लोग को जो बोला थे जे ऐसे ऐसे सब कुछ हम लोग दे रहा है, मगर हम लोग को कुछ नहीं मिला नहीं है। तो क्या आशा कर रहे हैं अभी? और कुछ हम लोग यार क्या आशा करेंगे? हम लोग अभी चला रहे हैं, हमारा सेंटर, हमारा जयपुर में स्टेट गवर्नमेंट का सीएम है, सीएम का इससे हम लोग चला रहा है। जो उन्हें अच्छा देखे, कोई भी अगर हम लोग को सुराह दे सकेगा तो कुछ कर सकेंगे, यही आशा हम लोग उम्मीद करते हैं। जाते जाते फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आसनसोल में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ रैली, राजू बनर्जी ने भरी हुंकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेयर जितेंद्र तिवारी पर राजू बनर्जी का करारा हमला। मेयर जितेंद्र तिवारी को इंगित कर कहा, तेरा क्या होगा कालिया। और আমরা মেয়র কে বলছি, अरे तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या होगा। कोरोना और लॉकडाउन से आसनसोल बस स्टैंड में आधी बसों के पहिए थमे, बस मालिक से लेकर बस कर्मचारी हलकान। आज की खबरों में इतना ही। शिल्पांचल के महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए न्यूज प्रहर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।